کہ مسلمان قوم سب سے زیادہ ڈری ہوئی قوم ہے اس ملک میں۔ ہم نے گردوارے میں تو نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ RSS کی انٹری مدرسوں میں ہو گئی ہے تو گردوارے میں بھی ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دوست کو نقصان پہنچے۔ ہم نے گردوارے کے باہر نماز پڑھی اور گردوارے میں جا کے سلام پیش کیا، شکریہ ادا کیا۔ روز آپ کی مسجد گرائی جاتی ہے اور آپ ڈرے اور سہمے رہتے ہیں۔ آپ 20 کروڑ ہیں، ہم 2 کروڑ ہیں۔ ہمارے گردوارے کی کوئی اینٹ نکال کے دکھائے۔ جس ملک میں میں رہ رہا ہوں وہاں جینے کی تمنا اب نہیں ہے۔ جو اس ملک میں لوگ انسان کو مار کر جشن مناتے ہوں، جس ملک میں لوگوں کو قتل کر کے الیکشن جیتتے ہوں، وہ ملک میرا ملک نہیں ہے۔ ہم نے گجرات میں اپنی قوم کو مرتے دیکھا، آپ کو دور سے دیکھتے رہے۔ ہم نے فکر نہیں کری کہ انسان کو مار رہا ہے۔ میرا دین اور آپ کا دین کیا کہہ رہا ہے، ہم نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا کہ ایک مخصوص قوم کو آپ روز لنچ کریں، اس کے گھروں پہ بلڈوزر چلائیں اور پھر اسی بات پہ الیکشن جیت لیں۔ ایک حاکم چلا گیا، دوسرا حاکم آ گیا۔ ہماری بستیوں میں جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہم جن کے بھائی تھے، انہی بستیوں میں ہم گنہگار کی طرح زندہ ہیں۔ ہمیں صبح اور شام ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس ملک کے دیش دروہی نہیں، دیش بھکت ہیں۔ آپ کے پاس ستم ہو تو ہم کھڑے ہوں، اور ہم پہ جب آواز اٹھے تو آپ کھڑے ہوں۔ ہم اگر جڑ جاتے ہیں تو یقین کیجئے یہ وہ لوگ جنہوں نے انگریزیوں کی جوتی اٹھائی تھی، یہ آپ کی جوتی اٹھائیں گے۔ دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، میں بہت آپ لوگوں کا مشکور ہوں، احسان مند ہوں کہ پورے دن آپ حضرات آئے۔ میں اس کے لیے دیا سنگھ صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ہماری دیا سنگھ صاحب سے کافی دنوں سے تعلقات ہیں۔ گڑگاؤں میں رہتا ہوں، وہاں جب پولیس نے نماز پڑھنے کو منع کر دیا، اور جیسا یہ کہا گیا ہے، ابھی ہماری ایک بہن نے بھی کہا کہ مسلمان قوم سب سے زیادہ ڈری ہوئی قوم ہے اس ملک میں، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دیا سنگھ صاحب نے کہا ہم گردوارے لے چلتے ہیں، چلیے وہاں پڑھ لیجیے نماز۔ وہ لمحہ تھا۔ ہم نے گردوارے میں تو نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ RSS کی انٹری مدرسوں میں ہو گئی ہے تو گردوارے میں بھی ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دوست کو نقصان پہنچے۔ ہم نے گردوارے کے باہر نماز پڑھی اور گردوارے میں جا کے سلام پیش کیا، شکریہ ادا کیا۔ اس وقت یہ خیال آیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ ہم پونا گئے، وہاں ہمارے گردواروں کے جو بڑے پریسٹ تھے، انہوں نے ایک سوال ہم سے کیا۔ ہم سے کہا کہ یا تو آپ کی تاریخ جھوٹی ہے یا آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو میں سمجھ نہیں پایا۔ انہوں نے کہا روز آپ کی مسجد گرائی جاتی ہے اور آپ ڈرے اور سہمے رہتے ہیں۔ آپ 20 کروڑ ہیں، ہم 2 کروڑ ہیں۔ ہمارے گردوارے کی کوئی اینٹ نکال کے دکھائے تو اندازہ ہوا کہ زندہ قوم کس کو کہتے ہیں۔ اور جس کی ابھی تقریریں یہاں ہوئی، ان تقریروں نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ مجھے جینے کی آرزو پیدا ہو گئی۔ جس ملک میں میں رہ رہا ہوں وہاں جینے کی تمنا اب نہیں ہے۔ جو اس ملک میں لوگ انسان کو مار کر جشن مناتے ہوں،
जिस मुल्क में लोगों को कत्ल करके इलेक्शन जीतते हो, वो मुल्क मेरा मुल्क नहीं है। लेकिन आज जब मैं अपने भाइयों को से सुना, मैंने अपने सिख भाइयों से सुना, तो मुझे ये लगा कि शायद ये फैसला बहुत जरूरी था कि हमको इस वक्त सोचना पड़ेगा। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि हमको माइनॉरिटी के साथ जोड़ना चाहिए। मुझे वो लम्हा भी याद है जिस वक्त पार्लियामेंट में बहस हो रही थी 1984 के दंगों की। हुआ ये कि 84 में आपके घर जलाए गए, कत्लेआम हुआ, हम दूर से देखते रहे। हमने गुजरात में अपनी कौम को मरते देखा, आपको दूर से देखते रहे। हमने फिक्र नहीं करी कि इंसान को मार रहा है। मेरा दीन और आपका दीन क्या कह रहा है, हमने उस पर अमल ही नहीं किया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा दीन क्या कह रहा है। लेकिन ये यकीन बात है, आज मुझे इतनी मसरत हुई कि इसी प्लेटफॉर्म से सिख भाई और बहनों ने कहा कि जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो हमसे देखा नहीं जा रहा है, जो गाजा में हो रहा है हमसे देखा नहीं जा रहा है। और गांधी के इस मुल्क में हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तारीफें करता है, एक लफ्ज उसके मुंह से निकलता नहीं है। जब दुनिया ऐसी बन जाए तो हमको अपने गुरु, अपने अल्लाह, अपने दीन के पास जाना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा क्या हम वहशियों के दिल में जिंदगी गुजारेंगे। हम वहशियों के मुल्क में आ गए हैं। बदनसीबी ये है कि एक मखसूस कौम को आप रोज लिंच करें, उसके घरों पे बुलडोजर चलाएं और फिर इसी बात पे इलेक्शन जीत लें। ऐसा नहीं है कि सब उस ख्याल के हैं, लेकिन ये चुप्पी साधी है उन लोगों ने कि हमारा घर तो अभी नहीं बुलडोज हुआ, मेरा बच्चा तो लिंच नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे घर पे आएगा तो देखूंगा। वो वक्त अब नहीं है। हमारे साथी ने मेरे दिल को जीता, चंडीगढ़ से आए। मैं आपसे कहता हूँ, दूसरी मजलिस, दूसरी कॉन्फ्रेंस आप चंडीगढ़ करिए। मैं अपने भाइयों को लेकर वहां आऊंगा और जो जहां करना चाहे, इस कन्वेंशन को आखिरी मत समझिएगा, इसको शुरुआत कहिए कि आज से हमने शुरू किया अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी तहजीब को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए। इन जालिमों से हम डरते नहीं हैं। और अगर आपका सहारा मिलेगा, ये जो हमारी सोई हुई कौम है वो भी शायद जाग जाएगी। क्योंकि हुआ ये है, हमने उतनी ही कुर्बानियां दी जैसे आप लोगों ने बयान किया। हमारी तारीख भरी हुई है। इस जमीन का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां हमारे खून के छींटे न पड़े। लेकिन कौन आजाद हुआ? किसके माथे से स्याही की रिदा छूटी? मेरे सीने में दर्द है अभी महकूमी का। मादरे हिंद पे उदासी है वही, खंजर आजाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए। ये आज का समा है। किसने कहा कि हम आजाद हो गए? एक हाकिम चला गया, दूसरा हाकिम आ गया। हमारी बस्तियों में जो हमारे साथ रहते थे, हम जिनके भाई थे, उन्हीं बस्तियों में हम गुनहगार की तरह जिंदा हैं। हमें सुबह और शाम साबित करना पड़ता है कि हम इस मुल्क के देशद्रोही नहीं, देशभक्त हैं। ऐसी कौम को क्या कौम कहें? अब सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि जैसा कहा गया कि आप खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अरे अगर हमारी कौम ने जिना को ठुकराया न होता तो क्या पाकिस्तान लाहौर तक बनता, लखनऊ तक बनता? हमारी कौम ने जिना को ठुकरा दिया था और ये कहा था कि नहीं, हम सांझी विरासत में रहेंगे। और आपकी कौम ने अगर कहा होता तो क्या उनको खालिस्तान उस वक्त न मिल गया होता? ये जो आरएसएस के लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ,
कौन एक भाई हिंदू राष्ट्र में रहता खालिस्तान बन चुका होता, और अगर ये मुस्लिम हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया होता जो आज कह रहे हैं, तो फिर कौन सा मुसलमान है जो जिना के साथ नहीं जाता? ये क्रिश्चियन जो आज बैठे हुए हैं, ये क्या यहाँ रहते? ये नॉर्थ ईस्ट या तो म्यांमार के साथ होता है या चाइना के साथ होता। इंसान फरामोश हैं ये लोग, ये झूठे लोग हैं जो आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र अगर बनना होता तो हम जिना के साथ जाते, लेकिन हमको तो ऐसा मुजरिम बना दिया कि हमने जिना को ठुकराया तो कहा तुम मुजरिम हो, हमने नेहरू को अपनाया तो हम मुजरिम हैं, हम गुनहगार हैं कि हमने अपनी कौम को बांट दिया, हमने अपने खानदान को बांट दिया, और ये कहा कि हम साझी विरासत में रहेंगे। और आज 75 साल के बाद, इस उम्र में पहुंचने के बाद, जब ये आंखें अपने रब को मिलने को बेचैन है, उस वक्त ये एहसास होता है कि हमने क्या फैसला किया था। इसकी कमजोरी सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने को एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। हम ये देखते रहे, ये सोच लीजिए कि जो कुछ 84 में हुआ, 2002 में हुआ, जो आज हमारे साथ यूपी और आसाम में और मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है, दुनिया चिल्ला गई, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल सके कि हम जुड़े नहीं। लेकिन आज आपकी कौम और इस मुसलमान ये देश, ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीखें रची हैं अपनी कुव्वत से, अपनी किरदार से, अपनी तलवार से तारीखें रची हैं। हम एक हों, हम जुड़े आपस में। आपके पास सितम हो तो हम खड़े हों, और हम पे जब आवाज उठे तो आप खड़े हों। हम अगर जुड़ जाते हैं तो यकीन कीजिए, ये वो लोग जिन्होंने अंग्रेजियों की जूती उठाई थी, ये आपकी जूती उठाएंगे। ये इसलिए मजबूत हैं कि इन्होंने हमको बांट रखा है। मजहब के बारे में जो आप लोगों ने कहा, दिल उछलने लगता था कि हम में आप में फर्क क्या है। हमें तो जैसा कहा गया कि हमें और आपसे सीखना है, हम सीखने को तैयार हैं, लेकिन हम आपके साथ ये चाहते हैं कि हम अपने मजहब को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, अपने कल्चर को बचाएं, और इनको जवाब देते हैं। और इन अल्फाज के साथ, इस गुजारिश के साथ कि 3-4 चीजें जो रेजोल्यूशंस हैं, एक तो हम चाहते हैं कि यहाँ से एक आवाज निकले कि जो फिलिस्तीन और गाजा में जो जुल्म हो रहा है, हम सब लोग उसकी शदीद मुखालफत करते हैं, और हुकूमत हिंद को ये कहना चाहते हैं कि तुमको गांधी का जो वायदा था उसको पूरा करो। ये मुल्क दूसरों की मदद के लिए और जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ है, तुम उससे इनकार मत करो। दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि जो हजरात ये समझते हैं कि हम लोग फिर किसी दिन किसी जगह बैठें, तो वहां हमको बैठना होगा। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, जो हक की बात है, जो हमारे 350 साल हम तेज बहादुर जी का वो कर रहे हैं। याद रखिएगा, वो हक पे थे। जिन्होंने जुल्म किया उनकी नस्ल आप ढूंढते नहीं मिलेगी आपको, और तेज बहादुर साहब के मानने वाले यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में पहुंचे हुए हैं। और जिन्होंने इमाम हुसैन के साथ जुल्म किया, उसके मानने वाले पूरी दुनिया में हैं, और आज यजीद को जानने वाला कोई दुनिया में नहीं है। तो हक हमेशा जिंदा रहता है। जिसने जुल्म किया उसको आप देख लें कि उसकी नस्ल का पता नहीं है, ढूंढते फिरिए कहीं मिलेंगे नहीं आपको कौन लोग कहाँ गए। ये अल्लाह का निज़ाम है, वो हक को हमेशा कायम रखता है। हो सकता है कि किसी की शहादत, किसी की कुर्बानी ले ले, लेकिन दुनिया को आने वाली नस्लों को बता देता है। करबला में जो कुछ हुआ, हम लोग कहते हैं कि इस्लाम उसके बाद जिंदा हो गया। जो कुछ तेज बहादुर साहब के साथ हुआ, सिख मजहब उसके बाद जिंदा हो गया। इन अल्फाज के साथ आप हजरात का फिर से बहुत दिल की गहराइयों से आप लोगों को शुक्रिया करता हूँ।